Welcome back to your computer class. This is your second chapter, and chapter name is using Excel as database. In this chapter, basically we discussed what is a database and what are the features provided by a database, and about form and advanced features of Excel. So let's start. Okay, this is your second chapter, and using Excel as database. So what are the features and topic we have to cover in this chapter is content is database, using form, sort and filter, using advanced filters, data validation, adding subtotal in database, and pivot table. So let's start one by one. Database. First concept is database. So what is database? Database is the collection of information in an organized manner. Okay. So database is a collection of information and collection of related type of data in organized manner. Information is stored in the form of tables. A table is the collection of rows and columns. Database contains any type of information like school record, student record, employee record, organization record, library record, or any kind of information can be stored in the form of database. Okay, simply we can say that database is the way or process to store different types of data in organized manner. ओके एक मतलब क्या बेहतरीन तरीके से कोई भी डेटा को स्टोर करने का प्रोसेस को हम डेटाबेस बोल सकते हैं. ओके, और डेटा कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. डेटा कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. हेयर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. तो अनदर और भी एक डेफिनेशन हम बता सकते हैं डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस फर्स्ट डेफिनेशन इज अगर इफ आस्क दैट व्हाट इज डेटाबेस, देन डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. दैट इज इनफ. एंड वी कैन से दैट डेटा द बिल व्हाट इज टेबल. इफ आस्किंग समवन आस्क दैट व्हाट इज टेबल, तो टेबल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डेटाबेस. कोई भी डेटाबेस का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम लोग टेबल बोलेंगे. क्लियर? एंड a table is the collection of row and column. Yes, every row, every table has is a collection of row and column. रो एंड कॉलम. अगर देखो तुम अपना कॉपी का कंटेंट जो होता है ना, फर्स्ट पेज, कोई भी कॉपी का फर्स्ट जो इंडेक्स पेज होता है उसमें भी क्या होता है, अलग अलग कॉलम होता है एंड रो होता है. सीरियल नंबर, चैप्टर नेम, होमवर्क, उसके बाद असाइनमेंट, सॉरी डेट रहता है, फिर सिग्नेचर रहता है. तो क्या है, ये सब अलग अलग टेबल तो एक ही था वहाँ पर. टेबल तो एक ही, ये तुम्हारा टेबल सपोज फर्स्ट इंडेक्स पेज जो होता है ना, ये उसका टेबल है. टेबल ये बन चुका है. हर एक टेबल के अंदर क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होता है. तो रो क्या होता है, ये वाला हर एक रो हो गया, रो 2, ऐसे अलग अलग रो होता है, इसको रो बोलते हैं. एंड इसको जो डिवाइड करते हैं ना, ये वाला वर्टिकल लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम. तो देखो टेबल, ये तो एक टेबल था फर्स्ट, ये एक टेबल है, बट दिस टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रोज एंड कॉलम. क्लियर? गुड. सो डेटाबेस इज द प्रोसेस टू organize different types of data in an organized manner, and table is the building block of a database. A table can contain, a table is the collection of row and column. So next, what are the advantages? What are the advantages of database? What are the advantages and of database? As we have read that database stores the data in the form of tables. A table consists of fields and records. Till now, that's it. तो database कोई भी देखो हमारा यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताया गया ना, कैन बी स्टोर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड इन योर क्लास. एवरी क्लास, हर एक क्लास का अपना अपना एक डेटाबेस होता है. सपोज क्लास 7, सब क्लास 7A एंड 7B. फॉर क्लास 7A देयर इज वन टेबल, वन एक्सेल फाइल, वन sheet. In this sheet contain the information about only class 7A.
Similarly, for 7b, there is also another table and it contains the information about only 7b. क्लियर? तो हर एक टेबल का क्या होता है, वो रिलेटेड टाइप डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है. When we create table in Excel sheet, it also contain field and records. Very important. जब भी when we are create any database और table, देखो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया. सोचो कि टेबल का सिर्फ देखो एक टेबल है, राइट. दिस इज टेबल. यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही हमने क्या किया, यहाँ पर कितना रो हुआ, अभी रो कितना हुआ, रो कितना हुआ, 2 रो हुआ, 1 2. अब यहाँ पर एक डिवाइड कर दिया तो बताओ रो कितना है, कॉलम कितना है. तो यहाँ पर रो भी, रो नंबर 1, रो नंबर 2, और ये होता है कॉलम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. क्लियर? तो देयर इज 2 रो एंड 2 कॉलम. एंड कॉलम को क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे, दिस कॉलम इज नोन एज फील्ड. फील्ड किसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को फील्ड बोलेंगे. ये हमारा फील्ड है, ये हमारा क्या है, फील्ड है. एंड ये दिस पोर्शन इज अवर कॉल्ड रिकॉर्ड. क्लियर? column is known as field and record is known as row is known as record. Okay, I'll discuss later everything, each and everything thing. Okay, field refers to the column and record refers to the row in Excel. अभी जो बताया क्या बताया, field जो field होता है, field refers to the column is referred as a field and row is referred as a record. So for we'll take the look of this image. Listen, so if asking that there is how many column is there, how many field is there. So field number, they listen, A, B, C, D, already these are what, these are a different column. In previous class already we discussed many things. So this is our what, field. This is also field, this is also field, and D, E, F, G, H, these are the field name. तो नेम यहाँ पर देखो टाइटल है ना, नेम, तो नेम क्या है, फील्ड नेम. स्विमिंग फील्ड नेम. क्रिकेट इज ऑल्सो ए फील्ड नेम. म्यूजिक इज ऑल्सो ए फील्ड नेम. ओके, दैट मीन्स फील्ड नेम मीन्स व्हाट, इट कंटेन सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. म्यूजिक, दैट मीन्स कितना टाइप का म्यूजिक हो सकता है, और लाइक और नो, यस और नो, आता है कि नहीं आता है. तो दीज आर द फील्ड. ओके, एंड ईच रिकॉर्ड इज नोन एज, ईच रो इज रिकॉर्ड नोन एज रिकॉर्ड. सो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 जितना भी है ना, ये सब क्या है, सबको रिकॉर्ड बोलेंगे. लेकिन रिकॉर्ड हम उसको बोलेंगे जब इसके पास इंफॉर्मेशन है. लेकिन लिसन हेयर इन रो नंबर 11 एंड 12, रो नंबर 11 एंड 12 डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू. इसके अंदर कोई वैल्यू है, नथिंग, नो वैल्यू, वाइड वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू है. तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट कैन नॉट कंटेन एनी वैल्यू. इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, कैन नॉट कंटेन एनी वैल्यू. दैट्स वाई रो नंबर 11 एंड 12 इज डजंट नोन एज record. So only row number 1 to 10 is known as record. Clear? So clear ना about field name and record क्या होता है. तो कॉलम को हम लोग फील्ड नेम बोलेंगे, कॉलम हेडिंग को हम लोग फील्ड नेम बोलेंगे, एंड रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट रो का इंफॉर्मेशन को हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे. ऑलराइट, ओके. सेम थिंग ऑल्सो हेयर ऑल्सो फील्ड. तो फील्ड अभी बता दिया, कॉलम नेम इज नोन एज फील्ड. फील्ड इज ए कॉलम विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल एंड ऑन मोर थिंग, फील्ड नेम देखो एक ये डुप्लीकेट नहीं होगा. यहाँ पर बताया नेम इज द फील्ड विच कंटेन ओनली नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. लिसन, फील्ड नेम, यहाँ पर नेम लिखे फिर और एक नेम लिख देंगे तो नहीं होगा. फील्ड नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड और कॉपीड. देखो नेम यहाँ पर लिखा तो एक ही बार नेम होगा, यहाँ पर नेम लिखा यहाँ पर नहीं लिख सकते और बाद में नहीं लिख सकते. तो फील्ड नेम सिर्फ एक ही बार होगा, मतलब फील्ड नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड और कॉपीड. नेक्स्ट, रिकॉर्ड इज द रो विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली 1 पर्सन. तो रिकॉर्ड देखो यहाँ पर मैंने अगर बता दिया कि देखो रो 2 यहाँ पर जो है क्या ये सॉरी यहाँ पर एक बात है कि जो यहाँ पर रो नंबर 1 है, तो रो नंबर 1 को क्या हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे.
रो नंबर 1 को क्या रिकॉर्ड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे रिकॉर्ड। यस और नो? रो नंबर 1 रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ओनली फील्ड नेम कंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो नेक्स्ट विल डिस्कस। यहाँ पर देखो रो नंबर 2, यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो एक रिकॉर्ड, कोई भी एक रिकॉर्ड से हम लोग सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, या एक ही मतलब कोई भी मैटर, कोई भी आइटम के बारे में या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो एक रिकॉर्ड में हमको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक रिकॉर्ड में हमको सिर्फ एक ही मतलब आइटम या प्रोडक्ट और पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट रीड इट। नेक्स्ट फील्ड तो हो गया। नेक्स्ट फील्ड नेम। तो हेडिंग, दिस इज नोन एज फील्ड नेम। बताया मैंने, ये फील्ड नेम है, ये भी फील्ड नेम है, ये भी फील्ड नेम है, ये भी फील्ड नेम है, अभी बताया फील्ड नेम। ओके, फील्ड तो क्या होता है, देखो ए बी सी डी दीज आर नोन एज फील्ड, लेकिन फील्ड का फर्स्ट जो हेडिंग होता है उसको हम लोग फील्ड नेम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा फील्ड नेम के बाद, ए फील्ड इज यूजुअली ए सिंगल कॉलम विद इन ए मल्टी कॉलम टेबल। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू गिव ए फील्ड ए सेंसिबल नेम। बताया, फॉर एग्जाम्पल ए नेम सच एज 1 2 3 4 इज लाइकली टू बी यूजलेस। अगर फील्ड नेम देखो यहाँ पर कोई नेम की जगह में नहीं, यहाँ पर कोई बता दिया 1 2 3 4 5, तो उसमें क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता ना, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो फील्ड नेम शुड बी कंटेन सम इंफॉर्मेशन और मीनिंगफुल। ओके, नेक्स्ट यूज कैपिटल टू फॉर्म ए कंपाउंड वर्ड, एग्जाम्पल माउंटेन, हाइट। तो व्हेन वी आर गिविंग एनी फील्ड नेम, तो यू शुड देखो यहाँ पर स्मॉल में देखे गया ना, स्मॉल में देखे रखा, बट स्मॉल माउंटेन, हाइट, but mandatory is or it is very good for practice that you have to follow like this pattern. Okay, like this pattern means use capital letter and first letter should be capital, first letter should be capital. Okay, एंड यूज एन अंडरस्कोर, एग्जाम्पल इफ अगर बीच में मतलब स्पेस देना है, देखो यहाँ पर ई एम पी आई डी, ई एम पी नेम, तो यूज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर सपोज किसी का नाम लिखना है फर्स्ट नेम, तो क्या लिखा मैंने, FIRST दे दिया फर्स्ट, एंड आफ्टर फर्स्ट एक अंडरस्कोर दे दिया, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख दिया क्या, नेम। तो अंडरस्कोर बेसिकली यूज टू सेपरेट टू वर्ड्स and combine two words in a different way. Okay, next using form. So form, what is form? So when you enter the data in the form of table, before going to discuss form, we will take some practical first from the Excel section. Okay, so go to what. Okay, listen. So this is our one dummy text. One second. This is our simple dummy text format. Listen, here it is A B C D E till J we have information. तो from A to A देखो A B ये सब क्या होता है, ये बेसिकली हमारा क्या होगा, जैसे A हो गया A to J तक, ये पूरा क्या होगा हमारा, ये पूरा हो गया हमारा फील्ड। ओके, फील्ड हो गया, तो कितना फील्ड है, ए टू जे तक फील्ड है। अब फील्ड नेम क्या होता है, जैसे मंथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, SST, कंप्यूटर, दीज आर आवर फील्ड नेम। एंड अगर रिकॉर्ड की बात, एंड नेक्स्ट इज आवर रिकॉर्ड लाइक फ्रॉम 1 2 3 4 मीन्स दीज आर आवर रिकॉर्ड। यहाँ पे ये रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है, ये दीज आर रिकॉर्ड। ओके, तो ये सब हमारा रिकॉर्ड होता है। क्लियर ओके, समझ में आ गया फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है। हाँ, और एक बता रहे थे, देखो यहाँ पर जैसे देखो हिंदी, तो हिंदी क्या और भी कहीं पे यूज़ हुआ, नो, एक ही बार यूज़ हुआ ना, तो इसलिए बोला था कि फील्ड नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड एंड इट शुड बी ए गुड प्रैक्टिस टू स्टार्ट ए फील्ड नेम विद ए कैपिटल लेटर। देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया ना, तो अच्छा होता है ये। नेक्स्ट होता है हमारा फॉर्म के बारे में डिस्कस करना। तो चलो फॉर्म क्या होता है देख लेते। फॉर्म, लिसन, तो ये हमारा एक फॉर्म मतलब फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म
जब हम लोग व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट दैट टाइम अपेयर सम फॉर्म और व्हेन यू आर यूजिंग ए फेसबुक, तो क्या होता है वहाँ पर एक बॉक्स आता है, यू पुट डाउन यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड पुट डाउन यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देयर इज ए वन लॉग इन बटन। ओके, तो ये क्या होता है, ये भी एक फॉर्म होता है। तो फॉर्म इज द डिजिटल वे टू एंटर डेटा for insert easiest way to insert a data. Okay, the definition of what is form. The form is the graphical representation of data, representation of a table and easiest way to insert a data. Clear? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों बोले कि देखो कोई भी टेबल में जब क्या होता है, डेटा तो कहीं पे स्टोर होता है ना, तो टेबल का क्या होता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और हम उस टेबल में डेटा इंसर्ट करने का एक आसान तरीका होता है। व्हेन यू एंटर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन द एक्सेल शीट, यू नीड टू एंटर द डेटा फॉर ईच रो वन बाय वन। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर मैं एक्सेल में यहाँ पर यूज़ करूँगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर यूज़ करूँगा, यहाँ पर मुझे इंटर करना है तो क्या वन बाय वन एक एक करके मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका मैंने एक फॉर्म बना दिया ना, तो वहाँ पर एक फॉर्म आ जाएगा ग्राफिकल, वहाँ पर क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे और सिर्फ टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या हमारा डेटा इजीली क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो ईजीएस्ट वे, लेकिन फॉर डेटा हमारा कहाँ पर स्टोर होगा, डेटा तो इसी पर स्टोर होगा ना, इसी टेबल पर स्टोर होगा। ओके, तो इसी टेबल का एक क्या बन जाता है, फॉर्म क्या होता है, इसी टेबल का एक क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स वो क्या है, अभी रहता है ना, ये होता है ग्राफिकल, सॉरी ये होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब इस तरह का एक फॉर्मेट आ जाता है और वहाँ पर हम आसानी से क्या होता है, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, ऑलराइट। In this way, you need to manage the list where the information is arranged in the rows of the table. MS Excel 2016 provides you a special feature of form which offers a simple way to deal with big data in rows. सपोज देखो यहाँ पर तो देखो इन्फॉर्मेशन कम है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा ना तो क्या होता है, बहुत चेंज करना पड़ता है, इधर उधर मूव करो, फिर इन डेटा इंसर्ट करो। तो फॉर्म एकदम आसान तरीका कोई भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग, पहले थियोरिटिकल देख लेते। ए फॉर्म इज जस्ट लाइक एनी फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस फील्ड्स। तो देखो नॉर्मली जब हम लोग फॉर्म पहले क्या, अभी तो क्या ऑनलाइन हो गया मैक्सिमम थिंग, बट बिफोर सम ईयर्स अभी भी कुछ फॉर्म है ना, बैंक में जाते तो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एक फॉर्म दे देता है, वहाँ पर कुछ एम्प्टी जगह रहता है, फिल इन टाइप का ब्लैंक्स रहता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाई पेन हम लोग उसे फिल करते हैं। लेकिन वही चीज़ हम लोग जब कंप्यूटराइज वे में करते हैं ना, डिजिटली वे करते हैं, तब उसे हमको क्या करते हैं, तब उसको भी फॉर्म बोला जाता है। बट ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है डिजिटल फॉर्म। ओके, ऑलराइट। यू नीड टू एंटर द डेटा इन द फील्ड्स एज यू डू इन अदर फॉर्म, as it is an electronic form. Okay, important is digital form or electronic form, both are same. You can enter data, modify it and view on record at a time. तो क्या करते हैं हम लोग, इससे पूरा काम कर सकते। देखो डीएम, देखो डिलीट कर सकते, अपडेट कर सकते, एज वेल एज उसे हम इन स्नैप फॉर्म इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो आसान तरीका है कोई भी टेबल के साथ वर्क करना इन फॉर्म में, तो आसान होता है। कमांड्स, बटन्स और अदर कंट्रोल्स फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस टास्क। वी कैन इंसर्ट सम बटन ऑल्सो। बटन मीन्स देखो जैसे सेव बटन, नेक्स्ट बटन, इसमें अलग अलग बटन यूज़ कर सकते हैं। हम पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आप लोग को। ओके, तो एक देखो एम्प्लॉय डिटेल्स, ये क्या है हमारा, ये होता है एक हमारा एक टेबल है, सोचो एक टेबल, इसका फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, एक फॉर्म बन जाएगा। जैसे सैलरी का लिए एक बॉक्स बनेगा, क्वालिफिकेशन के एक बॉक्स बनेगा, डिजिग्नेशन के लिए एक बॉक्स बनेगा, डिफरेंट बॉक्स बन जाएगा। ओके, ओके शो आज थोड़ा और थियोरिटिकल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकली देख लेंगे पूरा क्या होता है नहीं होता। यहाँ पर एक बात है कि ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा इन द डेटाबेस। वही बात है कि इन्फॉर्मेशन और ईजी तरीके से मैनिपुलेट करना है। यहाँ पर एक रिट्रीव का मतलब क्या होता है कि उसे क्या डेटा को क्या करना है, डेटाबेस से उसे क्या करना, सर्च करके निकालना है। रिट्रीव का मतलब है क्या, निकालना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। ओके, फ्रॉम द डेटाबेस।
getting greeting forms, creating forms, I'm sorry, creating forms. Firstly, create a table in Excel as shown in the figure. So before going to create a form, for creating a form you need to create a table first. Okay, now convert the column names into table, select the table headings. तो देखो बेसिकली क्या होता है, हमको जब फॉर्म क्रिएट करना है तो एक टेबल बनाना है। जैसे मैंने एक टेबल बना लिया, इस टेबल को फिर क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाने के बाद भी एक काम है, सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इस टेबल जितना भी कॉलम है ना, कॉलम को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इसे सुन लो, बाद में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, टेबल में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर टेबल जब टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या देना है, टेबल हेडिंग देना। टेबल हेडिंग मीन्स दिस टाइप ऑफ हेडिंग, एक हेडिंग देना पड़ेगा। ओके, टेबल हेडिंग, ताकि पता चले कि हम कौन सा टेबल पर वर्क कर रहे हैं। आफ्टर गिविंग द टेबल नेम, ए क्रिएट टेबल डायलॉग form opens. A create table dialog box opens. Make sure that the my table has header checkbox is marked. Click OK button. जब वहाँ पर हम कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। The column names are converted into table. Now to add form, go to File option and an Excel option dialog box will appear. Click on Customize ribbon. Then click on the choose commands from drop down list box and select commands not in the ribbon. Click on form option, click on new tab, under new tab select new group, click add button. A form will be added to a new tab in ribbon. Click on OK button. तो ये तो हो गया थ्योरी सेक्शन, लेकिन थियोरिटिकल तो मतलब ये क्रिएटिंग फॉर्म इस प्रोसीजर में अगर हम पढ़ेंगे तो हमको तो ज़्यादा याद ही नहीं रहेगा। इसलिए कब याद रहेगा, हमको क्या करना, प्रैक्टिकली याद करना है इसको। तो हम बता देते और एक बार, यू कैन ऑल्सो ऐड ए फॉर्म इन क्विक एक्सेस टूल बार। ऑलरेडी हम बताया था क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या ऑप्शन होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में आप बेसिकली रीडू, अंडो, सेव एज, ये सब बेसिकली ऑप्शन अवेलेबल होता है क्विक एक्सेस टूल बार में। चलो जाकर देख लेते हैं। ये होता है हमारा ये एक्सेल। इन एक्सेल हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार अगर जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर देखो क्लिक किया तो इन होम सेक्शन ये होता है हमारा ये वाला पोर्शन। वन सेकेंड, सेव, इस पोर्शन ये वाला जगह में जितना देखो ना, यहाँ पर सेव है, अंडू है, रेडो है, और भी कुछ फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार देखो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो दीज आर द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय क्विक एक्सेस टूल बार। बेसिकली 3-4 याद रखना, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, नेक्स्ट अंडू, रेडो, दीज आर द basic features provided by quick access toolbar. Okay, from the Excel options dialog box, select quick access toolbar, click on commands not in the ribbon, from choose commands from list box, choose form, click add button. once more देख लेते चलो क्विक एक्सेस टूलबार में। चलो क्विक एक्सेस टूलबार में जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है। क्विक प्रिंट, शॉर्ट एडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग, मोर कमांड्स। यस, अंडर मोर कमांड्स, मोर कमांड के अंदर ऑप्शन मिलेगा। ये देखो ये वाला ऑप्शन मिला एंड गो टू योर स्टडी मटेरियल। देखो अब ये कमांड से इसका साथ मैच करो, इसका साथ थोड़ा मैच करके देखो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमको चाहिए, अगर फॉर्म चाहिए तो फॉर्म पे फॉर्म क्लिक करेंगे ना, तो जो भी चाहिए हमको यहाँ से हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते या ले सकते जो भी ऑप्शन हमको चाहिए। देखो अब कोई का कस्टमाइज़ करना है तो कोई टूलबार को हम यहाँ एक्सेस कर सकते। तो क्लोज इट। And next class we'll discuss the practically that how we can create a form and doing operation with a form. That means कैसे हम लोग फॉर्म से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं एंड फॉर्म से ही डेटाबेस को हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स अपडेट, इंसर्ट एज वेल एज डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये वाला ऑप्शन ओपन होता है ना, अंडर कस्टमाइज रिबन था, वहाँ पर कस्टमाइज रिबन के अंदर ये सब ऑप्शन आ जाता है। उसमें क्या क्या ऑप्शन लेना है देखो, क्लिप बोर्ड चाहिए, फॉर्म चाहिए, जो भी ऑप्शन चाहिए ये हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ से। तो बेसिकली देखो नंबर 1 पे क्या लिया, नंबर 1 पे लिया कस्टमाइज रिबन, नंबर 2
is command not in the ribbon. Number 3, form. Number 4 is, where is number 4? And it is new tab. Number 5, new tab is added. Number 6, add, that is completed. Okay, so we'll go and take once more look, once more commands. Under more commands, here it is customize ribbon. ये बताया गया था कस्टमाइज रिबन के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, फॉर्म को चूज़ करना है। तो फॉर्म कहाँ पर था, फॉर्म देखो यहाँ पर मिल जाएगा, ऑल टाइप पॉपुलर कमेंट्स। So this is for today enough. Today's for that is enough for today. We'll discuss next things in next video, and we'll provide study material also. So आप एक बार you have to read the content, and in next class we'll discuss all these things in practical. Okay. So thank you for attending class. Have a good day.